آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے 12ویں آیت مقدسہ تک تلاوت آپ کے سامنے اسکرین پر آ چکی ہے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت مقدسہ سے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے: جب یسوع یہ باتیں ختم کر چکا تو ایسا ہوا کہ گلیل سے روانہ ہو کر یردن کے پار یہودیہ کی سرحدوں میں آیا، اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں اچھا کیا۔ اور فریسی اسے آزمانے کو اس کے پاس آئے اور کہنے لگے: کیا ہر ایک سبب سے اپنی بیوی کو چھوڑ دینا روا ہے؟ اس نے جواب میں کہا: کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جس نے انہیں بنایا اس نے ابتدا ہی سے انہیں مرد اور عورت بنا کر کہا کہ اسی سبب سے مرد باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ بس وہ دو نہیں بلکہ ایک جسم ہے، اس لیے جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ انہوں نے اس سے کہا: پھر موسیٰ نے کیوں حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ دے کر اسے چھوڑ دیا جائے؟ اس نے ان سے کہا: موسیٰ نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تم کو اپنی بیویوں کو چھوڑ دینے کی اجازت دی، مگر ابتدا سے ایسا نہ تھا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور دوسری سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے، اور جو کوئی چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ بھی زنا کرتا ہے۔ شاگردوں نے اس سے کہا: اگر مرد کا بیوی کے ساتھ ایسا ہی حال ہے تو بیاہ کرنا ہی اچھا نہیں۔ اس نے ان سے کہا: سب اس بات کو قبول نہیں کر سکتے مگر وہی جن کو یہ قدرت دی گئی ہے، کیونکہ بعض فوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ ہی سے ایسے پیدا ہوئے، اور بعض فوجے ایسے ہیں جن کو آدمیوں نے فوجا بنایا، اور بعض فوجے ایسے ہیں جنہوں نے آسمان کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو فوجا بنایا۔ جو قبول کر سکتا ہے وہ قبول کرے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائے اپنے آپ کو کلام کی شیما ہونے کے لیے تیار کریں۔ بیرور کے خالق اور مالک مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ ہم تیرا شکر تیری تعریف تیرے نام کی ترجیح کرتے ہیں، لیکن تو بلا خدا ہے، تیری شفقت اور تیری وفاداری کچھ تر کچھ رہتی ہے۔ مہربان خدا تیری عظیم محبت پر تیرا شکر کرتے ہیں جس طرح سے ہم سب کو اپنے گھر میں باہم جمع کیا۔ ہم سب مل کر تیری حمد و ثنا کریں، تیرے کلام میں سے سب کے تیرے تقدس و ساتھ فاقت رکھیں اور اپنی التجائیں نہ جاتے شکر گزاریں تیری حضوری میں گزاریں۔ مہربان خدا ہم دستہ کے سائنہ ہم پائے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑا جاتے تیری حضوری میں چونکہ ہمارا ایمان ہے تم نے ہمارے دعا کو سنا جواب دیا ہے۔ میرے خدا کر کے ہم کلام کے قسم میں داخل ہونے والے ہیں۔ مہربان خدا ہم اپنے آپ کو تیرے پاک کے تابع کرتے ہیں، تیرے آگے منت کرتے ہیں ہم سب کو اپنے کلام کے شیما ہونے کے لیے تیار کر۔ اپنے روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کی بنجر زمین کو نرما، تاکہ تیرے کلام کا جو بیج آج ہماری زندگی میں بویا جائے 30 گنا 60 گنا بلکہ 100 گنا پھل جائے۔ مہربان خدا محض ہم تیرے کلام کے سننے والے ہی نہ ٹھہرے بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنے۔ مہربان خدا ہم تیرے خادم کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں، تیرے کی منت کرتے ہیں کہ بندہ کچھ موسیٰ کی چابی سے کون خدا برباد کر سکتا ہے، اور جو دایا کے بایا ہو کلام آئے تو اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے تو اپنے بندہ میں سے ہو کر اپنے لوگوں کو ہم کلام ہوں۔ میرے خلاف اپنے بندہ کو حکمت کا کلام عطا کر، اپنے بندہ کو نیت کا کلام عطا کر، اپنے بندہ کو نبوت کا کلام عطا کر، تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں برکت پائیں، بہت سے لوگ اپنے گناہوں کا
करे, तौबा करे, ईमान लाए, रजा हासिल करे। इस वक्त तेरे बंदा तेरे लोगों से कलाम करे, तेरे पाक मुकाबले किसी से गिरे रहे। मेहरबान खुदावंद अपने बंदा के पास की तकलीफ बख्श दे। मेहरबान खुदावंद हम सबको अपने कलाम के शिमा के लिए तैयार कर, और जो पुलिस के परिंदे तेरे कलाम के बीच को खाने जाते हैं, तो यहाँ से निकल जाने को रोक देते हैं। पूरे माहौल पर तेरा नशा तेरा कंट्रोल जाते हैं। मेहरबान खुदावंद इस कलाम के सीखने और सिखाने के लिए हमारा हाथी बन, ये सब कुछ तेरे ज़ीन का लोग जिताले नाम में मांगते हैं। यीशु ने अपनी ज़्यादातर खिदमत गलील सुबह में की, ज़्यादातर नहीं, उसने क़याम किया। और आज यीशु गलील से निकल कर जा रहा है। जिस इलाके में यीशु जा रहा है वो उसके बचपन का इलाका है। बचपन यीशु का यहाँ पर गुजरा था, और कहते थे कि नासरत से कोई अच्छी चीज़ नहीं निकल सकती। यीशु उस इलाके में गया है, और उस इलाके के लोगों को यहूदी ख्याल करते थे गैर मुहज़्ज़ब है, कोई इतने अक्लमंद समझदार नहीं है ये। और यीशु गलील से अब निकला है, और दोबारा गलील में यीशु नहीं आया। सुबह गलील में से जब यीशु निकला है, तो उसके बाद तो दोबारा कोई जिक्र नहीं है कि यीशु गलील में आया। हाँ, यीशु गलील में आया था मुर्दों में से जिंदा होने के बाद, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद। लेकिन जब तक यीशु जिंदा था, जब तक यीशु चलता फिरता था ज़मीन पर, आज के बाद कलाम के हिस्से के बाद यीशु दोबारा कभी गलील में नहीं आया। और उस इलाके के बारे में मैंने पहले बयान किया कि यहूदी को अच्छा तसव्वुर नहीं करते थे, उन्हें अच्छा ख्याल नहीं किया जाता था, और कोई कदर भी नहीं करते थे। और यीशु का बेशतर हिस्सा ज़िंदगी का इसी इलाके में गुजरा। जवानी तक यीशु इसी इलाके में रहे, और कलाम इस बात को बयान करता है कि यीशु गलील से चला गया। और दूसरी बात यह है कि यीशु जब यहाँ से जाता है तो याद रखें, जो बात मैं करने वाला हूँ, यीशु जहाँ पर भी जाता है लोग कैसे भी खराब क्यों ना हो, यीशु सबको ठीक कर ले। इलाका अच्छा नहीं, लोग अच्छे नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यीशु जिसकी ज़िंदगी में आ जाए, यीशु जिसके घर में आ जाए, यीशु जिसके ख़ानदान में आ जाए, यीशु जिसके मुल्क में आ जाए, यीशु जिसके शहर में आ जाए, वो तब्दील हो जाता है, तब्दीली आ जाती है वहाँ। इसलिए यीशु उस इलाके में चला गया जिसे गैर मुहज़्ज़ब कहा जाता था, जिसे पसंद नहीं किया जाता। और जब यीशु जा रहा है तो कलाम इस बात को बयान करता है, दूसरी बात, कि उसके पीछे एक भीड़ लगी हुई है, उसके पीछे एक भीड़ लगी हुई है। और याद रखिए, आज के कलाम में से दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ भी जहाँ भी मेरा यीशु जाता है उसके पीछे 2000 साल पहले भी भीड़ लग जाती थी, और आज भी भीड़ लगती है। जहाँ मेरा यीशु होता है वहाँ भीड़ लग जाती है। और कलाम में लिखा कि यीशु जब जा रहा था तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो रही, और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। यीशु, पहला काम मैंने बयान कर दिया कि यीशु हालात ही तब्दील कर देता है, यीशु जिंदगी तब्दील कर देता है। और दूसरी बात यह है कि यीशु के पास दो किस्म की शिफा है। यहाँ भी यीशु शिफा दे रहा है, लेकिन यीशु के पास दो किस्म की शिफा है। सबसे बड़ी शिफा जो सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु दे सकता है, वो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। कोई और गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु। जब भी कोई बीमार उसके पास आता, यीशु कहता जा तेरे गुनाह माफ हुए, और वो उसका चल पड़ते। यीशु जो बड़ा काम करता है, यीशु गुनाहों को माफ कर सकता है, और जिसके गुनाह माफ हो जाते हैं, शिफा उसकी जिंदगी में खुद ब खुद आ जाती है। बीमार उसके पास आए, और भीड़ है, बीमारों की भीड़ है। आमतौर पर अस्पतालों में हम जाते हैं तो पता चलता है जी ये 2000 बेड का अस्पताल है, ये 500 बेड का अस्पताल है। लेकिन याद रखें, जिस अस्पताल में मेरा यीशु काम करता है वहाँ पर बेड कोई नहीं है, वहाँ पर बेड कोई नहीं है। अगर कोई मरीज बेड पर आता है, अगर कोई मरीज चारपाई पर आता है, मेरा यीशु कहता है उठ अपनी चारपाई उठा और यहाँ से चला।
पास कोई बेड वाला अस्पताल नहीं है, बल्कि जहां मेरा यीशु जाता है लोग चलते चलते शिफा पा जाते हैं उसके पास आते ही। और यहाँ पर क्या है कि भीड़ उसके पीछे है, भीड़ उसके पीछे आ रही है। भीड़ की खूबी यह है कि यीशु के पीछे है। और आज के कलाम में से तीसरी बात बयान करना चाहता हूँ, जो शख्स भी, जो बहन भी, जो बेटी भी, जो फर्द भी यीशु के पीछे आता है, यीशु उसे तब्दील कर देता है, शिफा दे देता है। इस बड़ी भीड़ की खूबी है कि यीशु के पीछे आए, यीशु के पीछे चल रहे हैं। और आए किसके पास है? उस वक्त उस मुल्क में बड़े बड़े डॉक्टर थे, बड़े बड़े हकीम थे, बड़ी बड़ी दवाइयाँ थी, रोग ने बिलसान भी था। उस वक्त दीन भी बड़े कारीगर थे, बड़ी बड़ी शिफा वाली दुआएं देते थे। लेकिन जिन बीमारियों का इलाज मेरा यीशु करता है, हकीमों के पास उसका इलाज नहीं। हकीमों के पास उसकी उस शिफा का इलाज नहीं था। इसलिए तो लोग यीशु के पीछे आए हैं, एक भीड़ उसके पीछे लगी रहती है। और मैंने पहले बयान किया था कि 2000 साल पहले भी भीड़ उसके पीछे आती थी, आज भी भीड़ यीशु के पीछे आती है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, उसने उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उन्हें वहाँ अच्छा कर दिया, रास्ते में चलते हुए। और याद रखें, जब ये बात बयान की गई, उसने उन्हें वहाँ अच्छा कर दिया, तो यीशु चलता चलता भी शिफा देता था। यीशु को खड़े होने की जरूरत नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं है तुझे शिफा दी, तुझे शिफा दी। यीशु शिफा नहीं देता। मैं प्यार करने वाला हूँ, यीशु चलता जाता है, यीशु अपने पाँव पर है और यीशु अपने काम में मसरूफ है। एक औरत आकर उसका पल्लू छू लेती है और उसे शिफा मिलता है। यीशु खड़ा नहीं हुआ, यीशु चलता जा रहा है, औरत उसके कपड़े को आकर छू लेती है और औरत शिफा पा जाती है। ऐसे ही काम वहाँ पर भी यीशु करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने उन्हें वहाँ अच्छा कर दिया, चलते चलते रास्ते में यीशु शिफा देता जाता है, यीशु अच्छा करता जाता है। दो काम हमने देख लिए कि यीशु ने जाकर उस इलाके में जिसे पसंद नहीं किया जाता, जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर गैर मजहब लोग रहते हैं, वहाँ जाकर यीशु रहता है और उनकी जिंदगी को तब्दील करता है। और दूसरा हमने देखा कि यीशु चलते चलते जंगल में भी बगैर अस्पताल की शिफा देता है, लोगों की चार पहिया उठा देता है। और यीशु जहाँ जाता है वहीं अस्पताल नहीं रहता, वहाँ शिफा यीशु के हाथ में आता है। कलाम मुक़द्दस इस बात को बयान करता है, जब ये काम हो रहा था तो फरीसी उसके पास आने और यीशु को आजमाना चाहते हैं, यीशु को फांसना चाहते हैं। लेकिन और फरीसी उसे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहने लगे कि हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है। यीशु से सवाल करते हैं और यीशु के पास, इससे पहले हमने सीखा कि यीशु के पास वो एक दिन पैसे लेकर आ जाते हैं, दमड़ी लेकर आ जाते हैं, देला लेकर आ जाते हैं। यीशु को देला देकर कहते हैं कि जरा बता कि कैसर को जिजिया देना रवा है या खुदा को। यीशु कहता है जरा मुझे पैसे पकड़ाओ। पैसे पकड़ के यीशु देखता है और यीशु कहता है जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को दो। वो यीशु को फांसने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कहे कि कैसर को नहीं देना चाहिए, खुदा को देना चाहिए, तो वो कैसर को जाके कहेंगे ये हुकूमत की मुखालफत करता है, इसे पकड़ो, इसे इस पर मुखालफत का इल्जाम लगा के उसे मरवाना चाहते हैं। यहाँ पर भी वो शरीयत की बात करते हैं, पहले यीशु पर इल्जाम लगाते हो ये जादूगर है, ये बालज़बूल की मदद से पत्थरों को निकालता है। अगर वो ये भी साबित कर जाते तो यीशु को जो सजा मिलती वो सजा मौत थी कि ये तो जादूगर है, जादूगरों के पीछे लोगों को लगाता है। और कलाम मुक़द्दस में आज फिर वो यीशु को आजमाने के लिए आया है। और आज के कलाम में से तीसरी बात आपको बयान करना चाहता हूँ, मेरे यीशु को कोई नहीं आजमा सकता। मेरे यीशु के पास सारे सवालों का जवाब है। मेरे यीशु के पास ऐसी तालीमात है जो किसी और के पास नहीं है। उस वक्त कोई और ऐसी तालीम नहीं दे सकता, उस वक्त कोई और ऐसी बात नहीं कर सकता जो बातें मेरा यीशु करता था, जो तालीम मेरा यीशु देता था। और आज भी
दुनिया में बड़े बड़े आलम कहते हैं कि जिसने मसीहत को जानना है वो यीशु का मशहूर पहाड़ी बाज पढ़ना। आज भी उससे ऐसी तालीम पिछले 2000 सालों से कोई नहीं दे सका जो तालीम मेरे यीशु ने दी, जो तालीम मेरे और आपके यीशु ने दी। और यहाँ पर भी आजमाने के लिए फक्की और फरीसी आए हैं, और ये बड़े कारीगर थे, बड़े आलम थे, अपने आप को समझते, बड़े फांसने वाले समझते थे, किसी को बख्शते नहीं थे। और यहाँ पर यीशु के पास आए और आकर उससे सवाल करते हैं, हर एक बाप से अपनी बीवी को छोड़ देना लगा। उसने जवाब में उसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदाई से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इसी सबब से मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा, इसी सबब से कलाम है, इसी सबब से मर्द बाप और माँ को छोड़ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। यीशु उन्हें बताते हैं कि इसी सबब से जब खुदा ने बनाया आदम को, खुदा ने बनाया आदम से हवा को, तो उसने एक के लिए एक ही बनाया। आदम के पास जब खुदा ने पहली जिम्मेदारी दी, खुदा ने कहा कि आदम तू जानवरों के नाम रखा करेगा। जानवर जब आए, आदम वहाँ बैठा था, जानवर वहाँ से गुजरते गए जोड़ों की सूरत में, और आदम उनके नाम रखता गया, लेकिन कोई आदम के लिए जोड़ा नहीं था। फिर खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊँ। खुदा ने एक मददगार उसके लिए बनाया। और कलाम मुक़द्दस में जब खुदा ये काम कर चुका, बना चुका, तो खुदा ने इस बात का इजहार किया कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा। और मैं इस बात को अक्सर बयान करता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि खुदा हजारों साल पहले पाकिस्तान की सास को जानता था। हजारों साल पहले खुदा पाकिस्तान की सास को जानता था, दुनिया की सास को जानता था कि फटा सस पाती है, नूह भावे चंगी हुए हेल हेल तोड़नी है, कोई और कुछ नहीं मिला, हेल हेल तोड़ती है, हेल हेल रोटियां पकाती है, कोई ऐसे ऐसे इल्जाम लगाती है सासें। और याद रखें खुदा जानता था कि ये फटा पड़ेगा, इसलिए खुदा ने कहा इस बात से मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। जो खुदा ये कह रहा है, उसके मुंह के अल्फाज है कि मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिलाएगा, लेकिन वो कहता है तेरे माँ बाप तुझे छोड़ देंगे लेकिन मैं तुझसे दस्तबरदार नहीं हूँ। माँ बाप छोड़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत से भाई बैठे हैं, बहुत सी बहनें बैठी हैं जिनके माँ और बाप नहीं है। माँ भी कोई नहीं और मेरे भी माँ और बाप नहीं है। मैं भी अपनी माँ से बड़ा प्यार करता था, और सारे जितने यहाँ लोग यहाँ बैठे हैं अपनी माँ को बड़ा प्यार करते हैं, अपने बाप को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जो उससे भी प्यारा है वो हमारा आसमानी खुदा है, जो उससे भी प्यारा है। और मैं एक बात कहा करता हूँ कि माँ बाप छोड़ दे कोई बात नहीं, बाप मर जाए कोई बात नहीं, माँ मर जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरी दुआ है कि खुदा किसी को कभी नहीं छोड़े, खुदा किसी को कभी नहीं छोड़े जो हमारे माँ बाप से भी ज़्यादा हमें प्यार करता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह उनके सवालों का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसी सबब से मर्द बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अब कहते वो दोनों एक जिस्म होंगे, और एक जिस्म को कभी बीच में से काट दे तो वो जिंदा रह सकता है? हरगिज़ नहीं। इस वास्ते खुदा कहते हैं कि तलाक वाले पास से ना जाए। खुदा यीशु मसीह जो तालीम दे रहे हैं वो कहते हैं तलाक वाले पास से ना जाए। तलाक से खुदा को नफरत है, तलाक को खुदा नापसंद करता है। हाँ, खुदा जिस बात को पसंद करता है वो ये है कि दोनों मिलकर रहे, खानदान मुत्तफिक रहे, खानदान मुत्तहिद रहे। हाँ, एक मेरा दोस्त था किसी और मुल्क का, तो वो मुझे कहता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई ऐंची होती है जिन्हें हवा से छुरियाँ मारनी, हवा में छुरियाँ मारनी, बाद में थोड़ी देर बाद फिर सुना होती है। हाँ, मियाँ बीवी में इख्तलाफ हो सकता है, मियाँ बीवी दोनों फर्क सोच के हो सकते हैं,
मियाँ बीवी दोनों फ़र्क ख़ानदान से हो सकते हैं, दोनों की तरबियत में फ़र्क हो सकता है, लेकिन खुदा चाहता है कि मिल कर रहें, ख़ानदानों में मिल कर क़याम करें। और अगर कोई बड़ा ही अच्छा बेटा हो, और मैं अक्सर से ध्यान करता हूँ शादियों पर, अगर कोई बहुत अच्छा बेटा हमारा हो तो वो अगर लिफाफा लेके बीवी के कमरे में चला जाए तो घर में फटा पड़ जाता है। अम्मा कहती है, भैन कहती लै और लिफाफे भी बुढ़ी के कमरे से ही चलते हैं। फिर अगर उससे भी कोई अच्छा हो, ज़रा ज़्यादा ही कोई अच्छा हो, तो वो इस बात को बयान करता है। कभी तनख्वाह लेके बीवी को जाके दे दें, ले और पैसे भी उधर ही जाते हैं, लिफाफे भी उधर तो पैसे भी उधर, फटा पै जाता। खुदा के कलाम में इस बात को बयान किया गया कि इस बात से मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिलेगा। जो खानदान खुदा ने बनाया है, खानदान चाहता है कि खुदा चाहता है वो इकट्ठे रहें। और मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम उनकी मदद करें, हम उनकी रहनुमाई करें ताकि खानदान एक तश्कील पाए। और यीशु भी यहाँ इस बात को बयान करते हैं, कलाम मुक़द्दस में यीशु कहते हैं इस बात से मर्द बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और दोनों एक जिस्म होंगे। मसीही शादी में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि जिसमें दो बदन एक हो जाते हैं, दो जिस्म एक हो जाते हैं। ये मसीही शादी का इम्तियाज है, ये मसीही शादी की खूबसूरती है। और इसीलिए मसीहत में तलाक को हम पसंद नहीं करते, तलाक नहीं होते। कलाम मुक़द्दस में इस बात को बयान किया गया। इसी सबब से मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा। और आगे चल के लिखा है बस वो दो नहीं बल्कि एक है, एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। मेहरबानी से गौर करें, कहते हैं जिसे खुदा ने जोड़ा है, इसका मतलब है कि खुदा जो बात मैं करने वाला हूँ गौर से सुनिएगा, मेहरबानी से इसे गौर से सुनेगा। खुदा रिश्ते भी करता है, खुदा जोड़ता है, खुदा खानदानों को जोड़ता है। और जब जो बात मैं सिखाने वाला हूँ यह है कि मेहरबानी से जब अपनी शादी करनी हो तो दुआ ज़रूर किया करें, शादी से पहले दुआ ज़रूर किया करें और खुदा से कहें कि खुदा मेरा रिश्ता तू जोड़, मेरा रिश्ता तू कायम कर। और जिनके रिश्ते खुदा कायम करता है वो बड़े ही मजबूत होते हैं, बड़े ही शानदार होते हैं। इसलिए यीशु के बात में बताता है इसीलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और शादियों पर मैं बताता हूँ कि मसीही शादी में दो गवाह होते हैं, साइन करते हैं मेरे पास आकर, जो निकाह हम पढ़ते हैं। एक और भी गवाह होता है जिसे हम देख नहीं सकते और मैं ईमान रखता हूँ वो मेरा खुदा। इसी शादी में जो गवाह तीसरा होता है वो साइन तो नहीं करता लेकिन वो वहाँ पर मौजूद होता है। इसीलिए पिछले 1700 साल से शादियाँ चर्च में होती हैं। मेहरबानी से आजकल ज़रा रवाज है कि निकाह चर्च में नहीं करते लोग, टाइम थोड़ा होता है, आगे उत्ते ही कहते ने कर दियो मैरिज हॉल जी। लेकिन मेहरबानी करके कोशिश किया करें कि निकाह गिरजे में हो, क्योंकि खुदा का घर है और मेरे ईमान है कि खुदा यहाँ पर हमारी शादी में मौजूद है। आजकल थोड़ा कम हो गया है, जब से शादियाँ मैरिज हाउस में होती हैं आमतौर पर हमें भी कहा जाता है पर साहब टाइम थोड़ा है, निकाह उत्ते ही कर दियो आपने। लेकिन मैं सिखाना चाहता हूँ आपको कि मेहरबानी से गिरजे में आया करें। और मुझे खुशी होती है जब लोग चर्च में आकर निकाह करते हैं, चर्च में आकर रसूमात अदा की जाती है और ये खुदा का घर है और मेरा ईमान है खुदा यहाँ पर मौजूद है शादी में। और इसीलिए यीशु बयान करते हैं जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। और दूसरी बात यह है कि कभी खानदान में ऐसा मौका आए कि जुदाई का सबब बनता हो तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करें।
मुतफिक होने की, मुतहद होने की बात करें। खुदा ने यीशु ये चाहता है। और कलाम के अगले हिस्से में इसी बात को बयान किया गया। उन्होंने उसे कहा कि मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए। एक ही शरीयत में एक ही उस वक्त लोग तरह तरह से तरीके निकालते थे छोड़ने के, बीवी से जुदा होने के, खानदान को तोड़ने के, जरा सी सी बात पर तलाक दे देते थे। और मूसा ने उनकी सख्त दिली की वजह से, मुकद्दस मूसा ने उनकी सख्त दिली की वजह से ऐसा किया था। इसी बात को यीशु यहाँ बयान करते हैं और वो कहते हैं इसी सबब से मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इंतजाम में ऐसा ना था। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को आरामकारी सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से प्यार करे, वो ज़ना करता है। खुदा पूरा बताते हैं कि छोड़ना नहीं चाहिए, एक ही सबब है और वो है आराम का। इसी सबब से बीवी को छोड़ा जा सकता है, लेकिन याद रखें वफादारी, ताबेदारी खुदा ने इसीलिए बनाया था, जोड़े को इसीलिए बनाया कि एक दूसरे की मददगार, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के साथ रहें। खुदा जुदाइयाँ पसंद नहीं करता, खुदा अलहदगियाँ पसंद नहीं करता, खुदा तलाक़ें पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि सब मिलजुल कर रहें, ताकि उसके मिलजुल के रहने के वसीले से खुदा से बरकत हासिल करें। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। असीस और प्यारा आसमानी खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे कलाम की जो हमारे कदमों को ले चला, गवाह के लिए बादशाह आज के कलाम के वसीले से हमें बड़ी बरकत देता है। यीशु के नाम के वसीले से। आप देख रहे हैं गुमटी चर्च टीवी।